हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड लेट्स कंटिन्यू विद द सी सैट एनालिसिस एंड ट्रिक्स पार्ट 4। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल जो सी सैट पेपर अटेम्प्ट किया था उसमें 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जहाँ पे मेरे एवरेज 120 नंबर बन रहे थे फ्रॉम मल्टीपल आंसर कीज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130, बट इवेंचुअली यू विल सी दैट आई गॉट very different marks from what was projected. So in similar sense, आपके इस साल अगर सी सैट में मार्क्स ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे हैं, so you can check the at least comprehension वाले parts with these videos and see if they help. If they do, please start preparing for mains, and otherwise best of luck and let's begin. ये basic information and mains focus group के बारे में जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो आप देख सकते हैं, and let's begin. The best universities like Harvard, MIT, despite having the luxury of some truly flipped classroom where students learn visual lectures, etc., professors guide the discussion and fill in whenever necessary, explaining those bits that seem to be eluding the students and throwing in advanced ideas that happen to be topical. These universities have made their video lectures available free to anyone in the world. They're also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their own pedagogy, picking the pieces that are appropriate for the needs and building a package around them. तो central idea हमें बताना है कि यहाँ क्या है. So efficacy of universities would be better in online mode of conducting classroom tuition as compared to. So ये बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करी गई है. efficacy के बारे में कोई बात नहीं करी गई है. Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. So this seems very very appropriate. अगला देखते हैं. We need not invest much in infrastructure related to higher education and yet develop better human and social capital. Infrastructure की I think यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करी गई है. Never necessary. इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बात नहीं करी गई है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सेंट्रल. प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस कैन, ये प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी यहाँ कोई बात नहीं करी गई है, सो बी सीम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. आवर सिटीज आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. मोर पॉपुलेशन It's important to address the issue of air quality. We need to all citizens in city planning create. तो हमें रैशनल इन्फरेंस करनी है. तो इन्फरेंस क्या है कि भाई एक तो ऑब्जर्वेशन है कि ये चीज़ें देखी गई हैं, तो इन चीज़ों के देखे जाने से हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए. क्या देखी गई हैं कि भाई सिटीज़ आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है, सिस्टम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज नहीं है, GDP का 65% है बट फैसिलिटीज़ टू केटर टू द नीड्स ऑफ पीपल नहीं है, वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव. Most inference need to have well defined administrative setup with autonomy. तो ये मतलब इतनी कोई यहाँ autonomy वगैरह की बात नहीं हो रही है. It is more about कि we need to plan for these things and sustainability की तरफ हमें काम करना है. ये आइडिया है इधर थोड़ा. Ever increasing population densities is a hindrance in our efforts to achieve sustainable development. Okay, मतलब ये भी कहीं यहाँ पे बात नहीं करी गई है कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है. पॉपुलेशन डेंसिटी आर मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ कि भाई बढ़ रहे हैं बट वी डोंट हैव सिस्टम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स. सो दिस डजंट सीम वेरी लाइकली हियर. To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainability-related interventions. So this seems appropriate. Public-private partnership mode of development is a viable long-term solution for infrastructure sustainability problems in India. तो ये भी यहाँ पे कोई मतलब बात नहीं करी गई है इसके बारे में, तो appropriate option over here appears to be C. तो इन questions को एक बार देखते हैं. Let's just continue with the passages. Nothing can exist in a natural state which can be called good or bad by common sense, since every man who is in a natural state consults only his own advantage and determines what is good or bad according to his own fancy, and insofar as he has regard for his own advantage alone and holds himself responsible to no one save himself by any law, and therefore sin cannot be conceived in a natural state but only in a civil state which is decreed by common consent of what is good or bad, and each one holds himself responsible to the state. Okay, so which one of the following is the best central idea? ठीक है, तो सार निकालना है हमें इसका. Conception of what is right or wrong exists due to the formation of state. Seems appropriate. इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. Sin cannot be conceived in a natural state but only in a civil state. Unless ruling authority decrees what is right or wrong, no man would be morally right. तो ये ruling authority वाली बात यहाँ पे नहीं है. It is more about कि भाई right or wrong existing in the absence and presence of a state, उसके बारे में बात है. इट्स नॉट अबाउट कि भाई कोई बोलेगा तो गलत है.
Man is inherently immoral and selfish in the natural state. तो this is incorrect. Why? Because immorality does not exist in a natural state according to the passage. The idea of what is wrong, what is right or wrong is necessary for survival of human species. Survival of human species के बारे में ये passage है ही नहीं, तो correct answer over here becomes A. Next देखते हैं. In the immediate future, we will see increasing commodification of many new technologies, AI, robotics, 3D manufacturing, custom-made biological and pharmaceutical products, lethal autonomous weapons and driverless cars. This will pose conundrums. The moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker and swerving and damaging the car has often been debated. The answer is both simple, save the human life, and complex. At which angle should the car swerve? Just enough to save the jaywalker or more than enough? If the driverless car is in Dublin, who would take the decision? The Irish government or the car's original code writer in California, or a software programmer in Hyderabad to whom maintenance is outsourced? If different national jurisdictions have different fine print on prioritizing a human life, how will it affect insurance and investment decisions, including transnational ones? So this is the essence here. कि how will it affect these decisions and किस तरीके से ये चीज़ें चेंज होंगी. सो लेट्स सी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं. टू मच ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री. तो ये मतलब डन सीम लाइकली ऑप्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे. बट अगर वन को एलिमिनेट करते हैं तो देर इज़ ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट, सी प्रोबेबल जो लग रहा है. बट लेट्स सी बाकी ऑप्शंस क्या है. वन टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स. सही है. इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट. दैट इज़ ट्रू, क्योंकि यही चीज़ हो रही है यहाँ पे कि कंपनीज जो हैं वो इस चीज़ को डिसाइड कर रही हैं कि भाई हाउ एंड व्हेन अ ह्यूमन लाइफ इज़ टू बी सेव्ड. क्यों? क्योंकि अगर टेस्ला ऑटोनोमस कार्स बना रही है तो टेस्ला डिसाइड कर रही है कि भाई कैसे बचाए, कब बचाए, क्या होगा, जो कि जनरली इज़ द डोमेन ऑफ अ स्टेट. स्टेट माने सरकार. पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन्स. डजंट सीम लाइकली, क्योंकि इस चीज़ पे यहाँ फोकस नहीं है. फोकस यहाँ पे है कि क्या जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें किस तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए एंड किस तरीके से हमें इन पे काम करना चाहिए. ओके, तो every state should focus on developing its own supply chains. Let's see. Doesn't seem very likely. Geopolitics will have to reconcile to many ambiguities and uncertainties. तो 5 seems correct. तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो 2, 3 and 5 ही एक्चुअली सही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 थोड़ा एम्बिगुअस हमें लग रहा है, या मुझे लग रहा है. Public policy of every country should focus on developing its own supply chains. Practical implications that can be derived. तो rational, plausible and practical implications कि भाई अब ये तो वही वाली चीज़ हो गई कि कहने को 4 भी आप बोल सकते हो यहाँ पे कि भी मतलब क्योंकि इतना सारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो 1 and 4, 1, 4 and 5 कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन ओवर हियर, क्योंकि just a second, sorry. So 1, 4 and 5 is a possible option over here, क्योंकि अगर हम एक लिमिटेड माइंडसेट से देखें यहाँ पे तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई इतना ग्लोबलाइजेशन हो रहा, हटाओ जी इसको, बंद करो, अपना सप्लाई चेन बनाओ, ग्लोबलाइजेशन बढ़िया नहीं है. बट दैट डज नॉट सीम लाइक अ रैशनल, प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल थिंग टू डू. सो इन दैट सेंस वी विल से सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. So let's now take up the next question, which is the resolution of bankruptcy cases in Indian banks under the IBC should bring non-performing assets situation under control. Despite the slow pace of resolutions by the National Companies Law Tribunal, the code can be helpful in cleaning up bank books in future credit cycles. The recapitalization of public sector banks too can help in increasing the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. But bad debt resolution and recapitalization are only a part of the solution, as they by themselves can do very little to rein in reckless lending that has pushed the Indian banking system to its current sorry state. Unless there are systematic reforms that address the problem of unsustainable lending, future credit cycles will continue to stress the banking system. So again, logical, rational, practical suggestion implied by the passage. तो देखें, lending by the bank should be closely monitored by central government. ये तो नहीं बोला है यहाँ पे, मतलब
रेजोल्यूशन वगैरह करने की ज़रूरत है, बट क्लोजली मॉनिटर ये सब कुछ नहीं बोला है यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट शुड बी केप्ट ऑन लो सो एज टू इंड्यूस बैंक्स टू लेंड मोर प्रमोट, बिल्कुल ही नहीं बोला है। मर्जर ऑफ मेनी बैंक्स फ्यू लार्ज बैंक्स अलोंग विद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मेक वायबल, नहीं। सजेशन इम्प्लाइड भी नहीं है ये। लार्ज बैंक लेंडिंग ज़्यादा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर बैड लोन प्रॉब्लम, दिस सीम्स मोर लाइकली एंड मोस्ट प्रैक्टिकल, दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो लेट्स गेट बैक टू द मैथ्स क्वेश्चंस। मैथ्स के क्वेश्चंस में देखें तो विजय स्पेंट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेन्स एंड पेंसिल्स। जय एंड विजय, जय बॉट 3 pens and 5 pencils, तो लेट्स से पेन इज x, पेंसिल इज y। तो जय ने कितना खरीदा? 3x प्लस 5y, एंड दोनों ने इक्वल अमाउंट से खरीदा है। एंड विजय बॉट 2 pens, 2x प्लस 7y। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, राइट, क्योंकि 3 में से 2 माइनस हो जाएगा ये, एंड 7 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमें। तो इससे हमारे पास ऑप्शन सी सीधा आ जाता है। द प्राइस ऑफ पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ अ पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P scored 40 marks more than Q in an examination. Okay, P is equal to Q plus 40 and Q scored 10% less marks than P, तो Q is equal to 90% या 0.9 P। 10% लेस 90% हो गया। तो अब इस स्टेटमेंट 2 को हम स्टेटमेंट 1 में डाल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 0.1 P इज इक्वल टू 40। क्यों? Q माइनस हो जाएगा यहाँ पे, Q इज़ 0.9, तो 0.1 P, तो P इज इक्वल टू 400 एंड Q इज़ P माइनस 40, सो Q इज़ 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन आस्क्स वन ऑफ हिज 3 friends XYZ as how much money he had. X replied half as much। बहुत ही वाहियात सवाल। तो y माइनस 40 इज इक्वल टू z बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 40, ठीक है, यही बोला गया है यहाँ पे। एंड y माइनस 40 इज इक्वल टू z बाई 2, एंड इफ z माइनस 40 is equal to x plus 40 is equal to y। तो ये सिंपल हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं, 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इनको आप सॉल्व करोगे तो आता है x इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 120, z इज इक्वल टू 160, एंड इसके हिसाब से टोटल 360 है। तो इसमें कोड आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा कोड है कि -1 +1 -1 +1 -1, कि m और l m से एक पहले आता है, b a से एक बाद में आता है, s t से एक पहले आता है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। सो केमिस्ट्री को देखिए क्या बनेगा, c -1 b, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। अब हमें क्या चेक करना है? 4th लेटर हमें चेक करना है। 1 2 3 4, 4th पे +1 है, एंड m के बाद आता है n, तो n वाला ऑप्शन ये हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द हैंड एंड द मिनट, डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक मेक अ 180 डिग्री एंगल विद ईच अदर। तो बहुत ही बढ़िया, ये क्लॉक अगर है तो 1 2 व्हाट सॉरी 12 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर सीधा सीधा दिमाग नहीं लगाओगे, सोचोगे ऐसे कि भाई 705 पे ये चीज़ होनी चाहिए, बट नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि जब 7 o'clock होगा तब आर हैंड परफेक्टली 7 पे होगा, बट क्योंकि 5 पे आ गया है ये थोड़ा सा आगे चल के, तो ये 7 से थोड़ा सा आगे हो चुका है। तो 7 से थोड़ा सा आगे हो चुका है, तो ये 1 और 2 के बीच में जब होगा तो ये 7 और 8 के बीच में कहीं होगा। सो दैट इज़ व्हेन यू विल गेट द परफेक्ट 180 एंगल। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर वुड बी बिटवीन 705 एंड 710। 58 सबका सही होना चाहिए था, क्योंकि भाई बहुत नंबर कैलकुलेट सब करते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनती है अपनी,
5 इंटू एक्स विच इज़ द करेक्ट, माइनस 2y इज इक्वल टू 387, इतने नंबर बन रहे हैं, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो इसको 2x 2y 180 कर देंगे, हम इनको ऐड कर देंगे, तो 7x इज इक्वल टू 567, तो x इज इक्वल टू 81। अगर x 81 है तो y हो गया हमारे पास 9, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों बड़े ही वाहियात से सवाल लगे मुझे, बट लेट्स सी। 3p 4p pp pp इज इक्वल टू rq2। तो व्हाट यू नीड टू नोटिस हियर इज कि एक कोई नंबर है ऐसा जिसको 4 बार जब आप ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट उसकी 2 आएगी। सो दिस इज व्हाट इज द ट्रिक टू दिस क्वेश्चन। तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो 1 इंटू 4 इज़ 4, 2 इंटू 4 इज़ 8, 3 इंटू 4 इज़ 12, तो 3 इज़ अ पॉसिबल कैंडिडेट। तो ऐसे और आप देखोगे तो 8 इज़ अनदर पॉसिबल कैंडिडेट। तो ये 2 पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं। तो अगर 3 और 4 से आप देखोगे तो RQ2 की वैल्यू आती है, जब इसको 3 डालते हैं हम इसमें 33 43 प्लस 33 33 करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 142। एंड जब इसको 38 48 88 88 करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 262। तो इनका एवरेज हम करेंगे तो आ जाएगा 202, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। PQ into 3 is equal to RQQ. Okay, but PQR are different digits and okay. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से करेंगे। द क्वेश्चन हेयर इज कि एक ऐसा कोई नंबर है जिसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट की डिजिट उसकी सेम आती है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, 1 नहीं आ रहा है, 2 से करो तो 6 आता है, 3 से करो तो 9 आता है, 4 से करो तो 12 आता है, 5 से करो तो 5 आता है, 6 से करोगे तो 18 आता है, 7 से करोगे तो 1 आता है। तो मतलब the only candidate over here for Q is 5, right? And P5 into 3 is equal to RQQ। तो RQQ अगर है ये तो R55 है ये, राइट। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 5 डिजिट आती हैं। तो अगर अंदाजे से देखा जाए, हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मतलब 7-8 मतलब बारी ही करना है आपको। तो 15 इंटू 3 45 नहीं बन रहा। तो एक तो ये भी चीज़ चाहिए आपको कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए आपका। तो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो इट कैन नॉट बी 15 25 30। हाँ 35 पॉसिबली हो सकता है, बट 35 इंटू 5 5 3 15 एंड 5, सो इट बिकम्स 105। 45 अगर देखें तो 4 3 12, 5 3 15, तो ये हो गया 135। 55 अगर देखें तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से आप जाओगे तो करीब 85 पे आके इंटू 3 जब आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 255 हिट एंड ट्रायल से। तो हिट एंड ट्रायल से हमें पता चल गया है कि Q इज़ 5, P इज़ 8, R इज़ 2। तो P प्लस R 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, जो कि यहाँ पे आंसर है। बैंक्रप्सी, लॉन्ग टर्म ब्रेकर एज स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, मैक्रो इकोनॉमिक। ओके, ये वाला सवाल हमने छोड़ दिया था फॉर सम रीज़न। तो इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू एनहांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनी वन विंग ऑफ such macro policy, monetary or fiscal, cannot independently work without active support of the other. Reflects the corollary to the passage given below. तो corollary का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो चीज़ बोली है इससे क्या निकल के आ रहा है, क्या समझ आया आपको। The central bank cannot work independently of the government. Seems a very possible thing. Government should regulate financial markets and institutions closely. ये तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। The market economy is not compatible with the socialist policies of the government. In India, objective not really.
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ए बिकॉज इट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हु इज़ द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द मैच? आपको बस इतना करना है कि फर्स्ट इनिंग्स में और सेकेंड इनिंग्स में जो रन है, अभी जैसे फर्स्ट प्लेयर हो गए 75 इन 175 बॉल्स, सेकेंड प्लेयर के हो गए 55 इन 97 बॉल्स, थर्ड प्लेयर के हो गए 35 इन 125 बॉल्स, फोर्थ प्लेयर के हो गए 25 इन 105 बॉल्स। तो ये दोनों लोग तो ऑब्वियसली पहले ही आउट हो गए क्योंकि इन्होंने बहुत कोई काम नहीं किया है। इन दोनों प्लेयर्स में से आपको देखना है फास्टेस्ट रन स्कोरर आपका हो जाएगा बी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ द विलेजर्स, लेट्स से ये हमारा एक विलेज है, ठीक है। हाफ द विलेज हैव देयर ओन हाउसेस, तो इनके पास हाउसेस हैं। 1/5 ऑफ द विलेज कल्टिवेट पैडी, 1/5 जो लोग हैं ये पैडी कर रहे हैं। मतलब ये जो बना रहा हूँ मैं, ये आप कोई भी किसी भी तरीके से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि द आइडिया हियर इज़ कि दीज विल हेल्प यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। आप इसको चेंज कर सकते हो, दूसरा एक डायग्राम बना सकते हो, आप 1/5 को कम्प्लीटली सारा इस तरफ बना सकते हो। सो उससे आपको एलिमिनेट करने में, समझने में चीज़ें मदद मिलेगी। 1/3 ऑफ द विलेजेस आर लिटरेट, तो मैंने बोला कि ये वाले जो लोग हैं 1/3, इनको मैं मान लेता हूँ कि ये लोग हैं लिटरेट। 4/5 ऑफ द विलेज आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, तो 4/5 ऑफ द विलेज मतलब ये अंडर 25। Which of the following statements is certainly correct? Certainly correct. All villagers who have their own houses are literate. ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लिटरेट वाला जो है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था 1/3, क्योंकि हाफ और 1/3 में ओवरलैप पॉसिबल है कि ना हो, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। सम विलेजेस अंडर 25 एज आर लिटरेट, तो सिंस सम विलेजर्स 4/5 ऑफ द पीपल आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज एंड 1/3 आर लिटरेट, तो ये तो डेफिनेटली आपका ट्रू है। क्यों? क्योंकि ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है। ओनली हाफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, तो दिस इज नॉट करेक्ट। नो विलेजर्स अंडर 25 एज हैज हिज ओन हाउस, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आपको ये देखना है ओवरलैप कहाँ आ रहा है। तो 1/3 ऑफ द पीपल आर लिटरेट एंड 80% मतलब 33% आर लिटरेट, 80% आर लेस देन 25, तो डेफिनेटली देर आर सम पीपल अंडर 25 हु आर लिटरेट, राइट। ओके, तो इस सवाल को देखा जाए, कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो लास्ट डे ऑफ मंथ इज वेंसडे, मंथ बना लेते हैं। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ अ वेडनेसडे, तो दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। थर्ड सैटरडे 1 2 3 इज 17। What day is the 14th of the given month? तो स्टेटमेंट 2 से तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है ये 17 है, 16, 15, 14। तो स्टेटमेंट 2 से तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई 14th डे क्या है। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ अ वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे है, बट हमें नहीं पता कि भाई इस महीने में 28 दिन है, 29 दिन है, 30 दिन है या 31 दिन है। तो अगर ये अलग होता है तो उसके हिसाब से 14th डे चेंजेस। सो स्टेटमेंट 1 से हमें नहीं पता चलता कि भाई कितना क्या हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, या सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो 10 अक्टूबर, जैसे कि आप पेपर दिया था आपने 10 अक्टूबर को 2000
21 विच वॉज अ संडे। आपको देखना है कि 2027 में तो 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, जिसमें से हमें पता है कि 24 जो है वो लीप ईयर है और हर साल में 365 दिन होते हैं, जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 52 विद अ रिमाइंडर ऑफ 1। रिमाइंडर ऑफ 1 का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक दिन एक्स्ट्रा आगे चला जाएगा। अगर एग्जैक्ट 364 डेज होते कैलेंडर में तो व्हाट वुड हैव हैपेंड वाज कि हर साल 10 अक्टूबर को संडे आ रहा होता, बट दैट इज़ नॉट द केस। सो लेट्स चेक आउट कि क्या बनता है। तो 2021 के बाद 22, अगर ये संडे था तो ये मंडे हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, बट ये लीप ईयर था तो 2 दिन ऐड होंगे, तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे हो जाएगा, 25 को फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, एंड दिस विल अगेन बी अ संडे। तो संडे इज़ द करेक्ट आंसर होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the two statements and 4 conclusions given below. You have to take blah, 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 here. Some greens are blues. अरे हमारे पास रंग है। Some greens, येलो जी नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। My goodness, ये क्या हुआ? Apologies for that. There seems to be some error. So let me just restart this. Apologies for that. ये generally नहीं होता है। So yep. So we were here and let's continue. Some greens are blues. Some greens, ये green ले लिए, are blues, ठीक है। Some blues are blacks. Okay, this is blue, black. Then some greens are blacks. Not necessarily true. No green is black, but we can also draw black like this. तो no, ये भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट सही हो। All greens are black, बिल्कुल भी नहीं। All blacks are greens, ये भी नहीं है। तो कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे सही नहीं है। D is the correct answer over here. This was Sunday. लास्ट क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है कि 2, 7, 22, 67, 202 x, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें देखते हैं गैप क्या है। तो इन दोनों के बीच में गैप है 4, इन दोनों के बीच में गैप है 15, इन दोनों के बीच में गैप है 45, इन दोनों के बीच में गैप है 145। सॉरी, दिस इज 5, इन का मल्टीपल 3, 3, 3, सॉरी ये 145 नहीं है, दिस इज 135। तो सिमिलरली इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 135 इंटू 3 का डिफरेंस आएगा,
तो eventually when you do that, the answer will come out to be 607. So that brings us to the end of the CSAT discussion, and I hope it helped you in some way or the other. And अगर आपका कहीं पे भी स्कोर पिछले ईयर के कट ऑफ के आसपास बन रहा है, CSAT आप क्लियर कर रहे हो या बॉर्डर पे भी हो, so start preparing for mains because time कम है. So best of luck, and please like, share, subscribe this video. Like and share this video and subscribe to the channel. Thank you for watching.